this pulse modulation, and the another topic is that is your pulse code modulation, right? So is it visible now, writing board? Yes, sir. So pulse code modulation we'll discuss. In pulse code modulation, actually it is a uh, process uh, to convert analog signal. In fact, you can say signal to digital signal, right? This means the xt is converted to xn, right? And the digital signal means, as I told you, that is there is a continuous signal, then discrete signal, and then digital signal. So digital signal means you can say that is a binary signal. Okay, so digital signal means that it is a binary signal, right? And the binary signal means you have to represent it by logic 0 and logic 1, right? So logic 0 and logic 1, right? And logic 0 means we say low level voltage, and logic 0 is high level voltage, right? So this is a representation. This does not means 0 does not means 0 voltage level, and 1 does not means 1 voltage level. It's only that is the voltage level is low and high. So it is sometimes we called L and H, right? This is the representation. So the pulse code modulation is actually you are converting in all modulation, you are converting signal from some one form to other form, right? So here we are. So how to so in this case we have a, so for this we have a number of process involved. The first and most is that is your sampling process, right? Sampling. Then the second one is your quantization, and the third one is your encoding, or you have to generate a code, right? So these are the three processes that we have, right? So actually, so if you see a process of, then this, if we represent this in a block diagram form, then we have this. So this is your obviously a source of your message signal. So if you come in a message signal form, so this will be your so this will be your message signal coming right here. So this is your message signal. So message signal that we have seen, this is empty, and now we consider that our empty signal, this is a message signal, is a low pass signal, right? So we consider as a message signal is a low pass signal with a frequency FM, right? So we have frequency FM, we have considered always a low signal pass frequency. So we put a low pass filter so that any signal which is
noise signal which is have a high frequency will filter out. So use a low pass filter, right, just to filter out unwanted signal. Then obviously we have a sampling to perform sampling process. Then we have a quantizer to perform quantization process, and then we have a encoder to perform encoding performance, and at the output you will get a PCM signal, right? Okay, so we'll discuss one by one all this process. आई थिंक तुम लोग को पढ़ाया नहीं था मैं ना पिछले लेक्चर में? नो सर, ये नहीं कराया था। हाँ, ये नहीं कराया था ना मैंने। अच्छा, ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा हूँ। सो दिस मीन्स दैट, so the first thing, the most important, that is we'll discuss first each process. Let us say sampling we are discussing, right? Sampling. So what is the sampling? Sampling is, that is, now if you have a signal xt, which is means analog signal, when it's convert to its a sampled version, it is called xnt, right? Where this t, इसको हम चलो ts कर देते हैं. So where this ts is a sampling time, and you know that this fs will be equal to 1 by ts, and this fs we call it sampling frequency, right? Sampling frequency, and this xt has the frequency of fm, right? So you have a sampling frequency, and this xt so here this xt is a low frequency signal, इसको हम बोलते हैं लो पास सिग्नल, and its frequency is fm, right? That's we have considered. So and this n is an integer, right? This n is an integer, so it is varying from minus infinity to plus infinity, right? So if you do that, so what do we mean by sampling? Okay, so now the sampling process, if you want to understand, is that, then let us say that is you have a, sorry यार क्या हो रहा है? So suppose we have a signal here, right? This signal is xt, of course this will be t, and let us say you have a signal, let us say this is your signal, right? This is any random signal here. Okay, आप चाहे तो इसको जो है 0 से भी मिला लीजिए, कोई इशू नहीं है, because so this is a signal mt. Okay, now this is of course a continuous time signal. Okay, now if you do the sampling, then we have to have a sample, we have to generate, then it will be look like, obviously it will start from here, 0 sample, and it is equal
This is another sample. This will be another sample. And this will be another sample, right? So these are the samples. Okay, so you can say that this sample, let us say the sample start with 0, so you can say from sample 0, sample 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the 5 samples. Okay, and this is your, the TS is from here, दिस इज योर TS. आप चाहे इसको यहाँ लिख लीजिए, चाहे यहाँ से हम लिख लेते हैं, ठीक है ना. दिस इज योर TS. ओके, सो द TS किस पे डिपेंड करेगा? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर. ओके, so now this samples will become a, now it becomes a sampled one. Okay, and this is your I mean say this will be like here. आपने सैम्पलिंग प्रोसेस आपने जो है पैम के अंदर भी देखा था आपने कि सैम्पलिंग से ही पैम मिल रहे थे आपके. ओके, सो दीज आर द सैम्पल्स. नाउ हाउ टू डू दैट is that, as I told you, how to perform this sampling process, and that already we have done. So it is very simple. Let us say this is your XT. Okay, you connect a switch here. This is of course an electronic switch. Okay, and this is your output. Okay, okay, so यहाँ पे XT मिलेगा और प्लस माइनस इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपका XNTS, and here you have a sampling, right? Sampling signal. Okay, and this we call it a, let us say इसको P से लिख लो, sampling. So this is called PT signal, and its frequency is your Fs. Okay, that means it has a sampling, samples up like this. Okay, it will be like this. Okay, which frequency, this is your TS हो जाएगा आपका. Okay, so what will happen is that अगर जो तुमको XT के ऊपर जो है, अब वो सिग्नल को देख लो. So when this this X and TS will be equal to 0 when S is off. ठीक है ना? Okay, when switch is closed, and this will be equal to your XT when switch is on. ठीक ना? तो स्विच ऑन कब होगा? आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, तो जब आपका पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा आपका, तो इट विल बी ऑन. जो आपका, तो इस पीरियड में स्विच आपका, अगर जो आपका पल्स यहाँ पे इस तरह से है, तो इस पीरियड में आपका जो स्विच ऑन रहेगा और इस पीरियड में आपका ऑफ रहेगा, या ऑफ पीरियड में. ओके, so this means you will get this one. So if you see that from here, अगर इसको देखो ऊपर वाले को, तो क्या मतलब हुआ आपका कि during this period
आपका यहाँ क्या है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्विच इज ऑफ, तो यहाँ पे क्या मिला, 0 मिल गया। और इस पॉइंट के ऊपर स्विच इज ऑन, तो जब ऑन हो रहा तो आपका जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी जितनी xt की वैल्यू है। फिर इस पीरियड में स्विच आपका जो है, आपका स्विच हो गया ऑफ, तो इस पीरियड में क्या मिला, 0, और इस पीरियड में आपका 1 मिल गया। ठीक है ना, इक्वल टू xt। यहाँ पे xt की वैल्यू 0 है, स्विच ऑन है, लेकिन xt की वैल्यू 0 है, तो आपको 0 मिलेगा। सो दैट इज द सिंपल सैम्पलिंग प्रोसेस। Now, so what is, so how to the sampling process, as you know, that is we do it for some purpose, but our original signal you have to recover. So what is there, there is a called sampling theorem. Okay, there is a called a sampling theorem, this you have to find. So what sampling theorem says is that because from sampled version we have to convert the original signal, right? So अगर जो हमारे पास ये एक सैंपल है तो हाउ वी कन्वर्ट इट, ठीक है ना। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अगर फिर से आपको इसको कन्वर्ट करना है सिग्नल को, सो व्हाट वी डू इज दैट सिंपली आप टिप्स को मिलाते चले जाओ, ठीक है ना। तो टिप्स को मिलाते जाओगे तुम इसको, सो इफ यू, आपके आपके पास तो ये आउटर लाइन नहीं रहेगी ना, ओरिजिनली आपके पास सिर्फ सैंपल्ड वर्जन मिलेगा आपको। सो व्हाट वी डू, इसमें हम टिप्स को ऐसे मिला देते हैं, राइट, बाय स्ट्रेट लाइन, right, this is straight line, and then we go this straight line, right. So if you recover, we'll get this blue line. Okay, so this is your recovered signal, इसको बोलते हैं लेट अस से xt cap, right, and this is your of course xt, ये आपका xt है ओरिजिनल सिग्नल, और ये आपका जो है xnt है sampled signal. Okay, so these are the three signals. So when you have recovered, there is some error. This is not exactly the same as xt, right? So this is a called error. So when you recover from the sample signal, there is error. Now how to minimize the error? Okay. So sampling theorem says that for the faithful recovery of the original signal from the sampled version, right, this sampling frequency should be greater than or equal to twice fm, right. Okay, so this is the sampling theorem says, that is आप क्या करेंगे, आप देखो जब फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी टीएस कम हो जाएगा आपका, right. When the fs is, because fs because this, you know that this ts is equal to 1 by fs. So when fs is large, the ts is small. तो जैसे जैसे टीएस स्मॉल होता जाएगा, एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ सैंपल्स भी इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है ना। अभी 5 है, अगर जो इसको हाफ कर दो तो 10 सैंपल हो जाएंगे, दैट इज अनदर क्वेश्चन। बट व्हेन द एफएस इज लार्ज, टीएस इज स्मॉल, तो जब टीएस स्मॉल होगा तो एरर कम होते चले जाएंगे, राइट। ओके, सो दिस, अगर जो आप एफएस को लो करोगे तो टीएस आपका जो है आपका लार्ज हो जाएगा, एरर विल इंक्रीज। ओके, सो दैट इज द ट्रेड ऑफ। बट ऑब्वियसली जब fs को बड़ा करोगे तो नंबर ऑफ सैंपल। नाउ इफ यू मेक fs इंफिनिटी, या ऐसा कर लो ts को 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, तभी सैंपल कैसा मिलेगा आपको बताओ, तो कॉन्टिन्यूस मिलेंगे, कॉन्टिन्यूस हो गया आपका, कंटिन्यूस, राइट। सो मिनिमम क्या हो जाएगा, ts 0 कर दोगे तो सैंपलिंग होगी ना, तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा आपका, बट आपका एकदम एग्जैक्टली ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा आपका। ओके, सो द फॉर अ गुड रिकवरी, दैट फॉर, या आप कहो कि नॉइज को रिड्यूस करना, टीएस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, और एफएस शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अब वो कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए,
तो अब इन्होंने एक कंडीशन लगा दी यहाँ के ऊपर, सैंपलिंग थ्योरम सेज दैट इज दिस शुड बी इक्वल टू 2 FM आर ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन कोई डेफिनेशन, ग्रेटर देन तो आपका इंफिनिटी होता है, बट मिनिमम ये होना चाहिए, minimum is that this fs should be equal to twice fm। तो अगर जो आप fs को twice fm रख रहे हो, what is fm? fm is the frequency of the input signal, then this is called Nyquist rate of sampling, Nyquist rate of sampling, right? So this is Nyquist rate of sampling, okay? So and because this Nyquist is a person who has developed this sampling theorem, okay? So उसके नाम पे इसको Nyquist rate बोलते हैं सैम्पलिंग। तो रेट ऑफ सैम्पलिंग के माने क्या होता है? अब हम कहें कि रेट ऑफ सैम्पलिंग, उसको एफएस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, रेट ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है ना? तो अगर जो फ्रीक्वेंसी आपकी इक्वल टू ट्वाइस एफएम है, इट इज नॉट, बट इन प्रैक्टिस ये मिनिमम के ऊपर क्या होता है कि बस आपका सिग्नल रिकवर हो जाएगा। इससे कम सिग्नल फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो सिग्नल विल नॉट रिकवर, ठीक है ना? तो बट द नॉइज विल बी वेरी वेरी लार्ज। सो इन प्रैक्टिस दिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी मच हायर देन ट्वाइस एफएम। लेकिन जब हायर करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम अलग आ जाती है, नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ जाते हैं, तो फिर वो बाद में हम डिस्कस करेंगे आपको जो है, ठीक है ना, वो क्या चीज आएगा। Is it clear? So now we'll finish. Now the second thing is that quantization, okay? So we'll go for quantization. So the second process that is involved in PCM is that quantization. Right? So what is the quantization is that, इसको हमने मिटा दिया, फिर से उसको हम बनाते हैं उसी चीज को, ठीक है ना? So the quantization, पहले हमने सैंपलिंग कर लिया था, उसके बाद क्वांटाइजेशन होगा, राइट? सो सपोज ये हमने थोड़ा सा डायग्राम ठीक बना कर लिया हमने, ये आपका xt है इधर को, ठीक है ना, सिग्नल हमें xt लेना है। सो वी हैव, लेट अस से वी हैव ए सिग्नल ये आपका सिग्नल है xt, ठीक है, एंड वी हैव डन इट ए सैम्पलिंग। इसमें थोड़ा सा इसको और करना चाहिए था, पहले इसको रुक, एक मिनट, इसको मिटाओ, थोड़ा सा सही नहीं हुआ ये।
लेट अस से ये तुम्हारा है xt, ठीक है, ताकि होल कवर को रेंज कवर कर ले हम लोग, होल रेंज। ओके, सो आफ्टर डू आप सैम्पलिंग के बाद हमारा हो गया आपका ये सैम्पलिंग। ओके, सो फॉर सैम्पलिंग so let us say this is a sampling, let us say some few samples इक्वल टू जितना हो जाए, एक सैंपल को बीच में ले लो पहले हम, ठीक है, दिस इज वन सैंपल, राइट, this is another sample, okay, this is another sample। हम कोशिश करें इक्वी डिस्टेंस हो, बट ये सब इक्वल होने चाहिए, क्योंकि बट ड्राइंग फिगर इज नॉट इजी। और ये आपका ये सैंपल आपका हो गया। Similarly, you have one sample here, और एक सैंपल आपको यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो दीज आर द सैंपल्स। ओके, सो दिस सैंपल इज देयर। ये तो जैसे पहले हुआ था वही हो गया, आपको कोई नई चीज नहीं है। बट नाउ क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, नाउ व्हाट हैपनिंग इज दैट इज this is a samples, so these samples have, so these samples, let us say सैंपल को हम S से कर लेते हैं। सो आपका जो है S0, S1 एंड S2 एंड सो ऑन। कितने सैंपल्स हो गए आपके, ये आपका हो गया 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 and you have 6 samples. Okay, now each sample may attain any value, right? Each sample, हर सैंपल के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, राइट। इसका देखो यहाँ पे इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू है, एंड जो मैग्नीट्यूड है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। ओके, नेचुरल नंबर आपका जो है, ठीक है। बट मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी फिक्स कर रखी है। ओके, सो नाउ वी हैव टू एक्चुअली इन क्वांटाइज, हमने मैग्नीट्यूड को क्वांटाइज करना है। So for quantization of magnitude, we have to develop a number of levels. Okay, so number of levels, let us say हमने यहाँ पे 4 लेवल से हम डिसाइड कर दे रहे हैं इसको जो है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दें, ये पूरा तो नहीं जाएगा ना, इसी से ड्रॉ करते हैं हम, इससे थोड़ा सा। So let us say we have 4 levels, हमने इसी से ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। आपके 4 लेवल्स हो गए। ओके, सो नाउ
लेवल हम बीच में कर दे रहे हैं, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बट जस्ट आई एम शोइंग ओनली वन। इसको हाथ से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। डायग्राम ड्रॉ करना सबसे मुश्किल काम है, ठीक बस। सो दिस इज लेट अस से ये M0, M1, M2 एंड M3, ठीक है ना। And so any magnitude lying between this range, any magnitude lying between this range, अब इसमें सैम्पलिंग में क्या है तुम्हारा कि कोई मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में कहीं भी रहेगा तो उसको हम मैग्नीट्यूड कितना होगा, M0 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर जो कोई रेंज इस रेंज में रहेगा, आप इसको कर लीजिए L0, L1, L2, L3 एंड L4 होगा ना। तो L0 और L1 के बीच में कोई भी मैग्नीट्यूड रहे उसको हम असाइन कितना करेंगे, M0। सिमिलरली L1 L2 के बीच में रहेगा उसको M1। ओके, इज इट क्लियर? So now if you see that, so को यहीं पे खत्म कर दूंगा, टाइम अभी है 2 मिनट का, ठीक है ना। So now say let us say this is the आप एक हो गया आपका सैंपल्स S, okay, this is the quantized level, let us say M, okay। So आपने क्या किया, हमारे पास कितने सैंपल्स हैं, 0 to 6, ठीक है। सो 0 to 6 में आपका हो जाएगा लेट अस से S0, S1, S2, S3, S4, S5 and S6, right? So now see S0 का लेवल कितना है, हेलो हेलो वासवान जी शरा हम उनके एडमिशंस अभी जो है वो चल रहे हैं, 25 तक की डेडलाइन थी एक्चुअली। मुझे भी नोटिस तो काफी पहले शेयर किया था रहमान ने कहीं लिखा, तो वो ये बस पता करना था किससे मैं पूछ सकती हूँ कि भाई वो जो एम्प्लॉइज हैं वो आर आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल आर दे एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट फॉर दिस। मैं समझा नहीं क्या कर रहे हैं आप, जो है एम्प्लॉइज में, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ, और वो पता करना है कि whether I am eligible to apply or not as a क्या, which kind of employee, as a lecturer, हाँ नहीं, पोजीशन क्या है, मतलब पोजीशन क्या, ये बताओ ना पहले, कोई ऐड आया क्या ऐसा? ओहो, तो आप एम्प्लॉय क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, आप एडमिशन लेने के लिए? हाँ, दोनों अलग क्वेश्चन है। आप हाँ एज स्टूडेंट बोलिए ना, एम्प्लॉय इसका नहीं उसमें है। तो यू वांट टू टेक एडमिशन, तो एडमिशन के लिए क्या करना आपको ना, उसकी तो एडमिशन चल रहा है ना, डेट उसकी फॉर्म भरना होगा, डेट तो खत्म हो गई उसकी ना एडमिशन की एप्लीकेशन की, तो आप अप्लाई कर दीजिए उसमें, ठीक है ना। हाँ, तो आप उसको जो है ना आप अप्लाई कर दीजिए उसको, ठीक है ना। आप उसमें आप लिख दीजिए कि मैं यहाँ पे कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ, बस ठीक है। वो मेरे ख्याल से उसमें कंसीडर करते नहीं है, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं मानते हमारे यहाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वो एज ए फ्रेश आपका स्टूडेंट एज ए कंसीडर होगा, राइट।
हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो आप अप्लाई कर दीजिए ना, आज फ्रेश अप्लाई कीजिए, फॉरगेट अबाउट दैट। ऐसे भी चूंकि आपको तो अब यहाँ रहना भी नहीं, आप तो एम्प्लॉइज शो भी नहीं कर सकते ना व्हेन यू वांट टू लीव, और उसको कोई कंसिडर नहीं उसका होता है, ठीक है, लेस नो इशू। तो आप सिर्फ आज आप अप्लाई कर दीजिए आप, ओके, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, या यू आर देयर? हाँ जी, तुम लोग Yes, हो? sir. कुछ Yes, लोग sir. हैं? Yes. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो तुम लिखते जाओ इसको। S0 की वैल्यू कितनी है? S0 की वैल्यू जो है, S0 की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जो है, देखो इसको ये रखो कि S0 आर इक्वल और L1 से बिल्कुल इक्वल पे क्या होगा, ये प्रॉब्लम होती है, तो उसको लेस देन लेके चलो, ठीक है ना। तो अगर जो बिल्कुल आपका जो है इस पे आ रहा है, इसको आप ये मान के चलो कि हम थोड़ा सा इसको लेस देन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ मान के चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? M0 की M0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सैंपल 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? M0. M0. M0 की, बेवकूफ, मैंने क्या किया, L1 L2 के बीच वालों को M1 देंगे ना। मैंने क्या बताया तुमको कि जो L1 L2 के बीच में रहेगा उन सबकी वैल्यू कितनी होगी? M1। तो ये वैल्यू कहाँ आ रही है? L1 L2 के बीच में नहीं आ रही है मैग्नीट्यूड इसका। व्हाट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और S2 की वैल्यू कहाँ आएगी? S2 की वैल्यू कितनी होगी? सैंपल 2 की वैल्यू, ये सैंपल 2 है, M2. M2 हो गया। अबे जब एक फार्मूला बता दिया तो उसको बोलने में इतना टाइम कहाँ लगता है? M3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो S3 की वैल्यू M3 हो गया। और क्या आ गया? S4 की वैल्यू कितनी आ गई? M3. M3 हो गई। और M5 M2. M2. हाँ, वो जो डायग्राम से दिख रहा है वही मिलेगा। और 6 की वैल्यू, M6 की वैल्यू M2. वो भी M2 आएगा, राइट। ओके, सो दिस इज योर सैंपल्ड वैल्यू। इसको हम बोले क्वांटाइज, इसको बोलते हैं क्वांटाइज वैल्यू। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? S1 की यहाँ पे थी आपकी, जो भी इसकी वैल्यू रही होगी यहाँ के ऊपर देख करके आप बता सकते हैं आपको कितनी वैल्यू है। बट आपने इसको क्या असाइन किया है? M1। ये वोल्टेज लेवल है, समझ लो। तो इसकी वोल्टेज लेवल मान के चलो कि ये अगर ये समझ लो वोल्टेज लेवल है, तो आपने क्या किया, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी यहाँ पे, लेटर से सम वैल्यू इसकी रही होगी V, बट आपने इसको वैल्यू कितना दिया है? ये वैल्यू दिया है। गॉट दिस पॉइंट? तो ये इसका मतलब इतना तो एरर हो गया तुम्हारा, ठीक है। सब चुप कैसे हो गए जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारे? आ रहा है। तो फिर एरर कितना, इसमें एरर आया ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि इस सैंपल्स की एक वैल्यू थी जो एक्चुअल वैल्यू थी, बट इसको हम एक दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो इसमें एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एरर विजिबल है, देखो तुमने इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू यहाँ पे थी और तुम इसको वैल्यू कितना दे रहे हो? ये M3 दे दिया। तो ये Error एरर आ आया रहा कि है नहीं सर. आया? तो एरर आ रहा है ना इसमें। तो ये Yes. एरर आपका आएगा, ठीक है ना। जैसे इसको बोलते हैं, तो ये एरर विल बी देयर, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। तो क्वांटाइजेशन की एक प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें आएगा आपका क्वांटाइजेशन एरर आएगा, और इसको बोलते हैं EQ बोलिए आप, वो तो EQ MQ मतलब का क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है ना, Q। तो एक तो ये कि जो भी प्रोसेस करोगे तो उसमें एरर आएगा। बस इसकी एडवांटेज क्या है कि अभी तक आपकी सबकी वैल्यू, अगर जो मान लिया और सैंपल हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ करते थे। अब आपके पास एम्पलीट्यूड चाहे 100 सैंपल हो जाए इसके अंदर, बट एम्पलीट्यूड कितना होगा? 4 तो लेवल होंगे। क्वांटाइज हो जाएंगे, सब 4 कम लेवल हो होंगे, जाएंगे. M0 M1 M2 M3, 4 लेवल्स होंगे, समझ गए ना। तो नाउ एट n number of magnitude you have made them to fall only under 4 level, and these are called quantization levels. ओके, समझ गए तुम? तो अब इसका हो गया, इसका मतलब कि तुमने इसको जो है एक लिमिट लगा दी। तो अब
अब इसकी कोडिंग करनी होगी। अब इसको इन कोडिंग हम ही बता दे रहे हैं तुमको, अब फिर डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। अब इन कोडिंग जो क्या है, इन क्वांटाइजेशन लेवल को एक बाइनरी नंबर असाइन करना, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को बाइनरी में लिखना। तो M0 है, अगर हमारे पास कितने लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं, तो 4 लेवल्स को इनकोडिंग बाइनरी में करने के लिए कितने बिट चाहिए तुमको? 2 बिट्स है। 2 बिट्स चाहिए, राइट। तो M0 क्या करोगे, 00, M1 का क्या हो गया, 01। सिंपली बाइनरी नंबर रखो। कोडिंग की टेक्निक बहुत अलग है, वो हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। सिंपल बाइनरी कोडिंग तुम पढ़ रखे हो। M2 क्या हो जाएगा, 10, M3 क्या हो जाएगा, 11। अब ये सारे 11 है। यहाँ पे M2 है तो क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे M2 है 10, ठीक है ना। तो अब तुमको क्या करना, ट्रांसमिट करने की बजाय अब तुमको ये सिग्नल एनालॉग जो था वो सिग्नल कन्वर्ट हो गया इस सिग्नल में, बाइनरी सिग्नल में, और इस सिग्नल को तुम ट्रांसमिट कर लो बाइनरी। ये डिजिटल हो गया ना, इसको बाइनरी, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये आपका डिजिटल सिग्नल हो कि नहीं हो गया आपका, इसी को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो हमने क्या कहा था कि आपका कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब जो हमें सिग्नल हो गया आपका जो है XT था, एक्चुअली XT था, वो कन्वर्ट हो गया। जब ऊपर से देख देख के बताओ, सबसे पहले क्या था, 00, फिर क्या है, बोलते जाओ, 01 01, 10 10, 10, 11 11, 11 11, 10 10, 10 10। तो अब आपको सिर्फ ये सिग्नल डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। दिस बिकम्स योर XT, आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको आपने, और इसको हम लिखते हैं XN, डिजिटल सिग्नल को लिखते हैं XN से। तो आपने XT को कन्वर्ट कर दिया इसमें, और ये बन गया XN। तो नाउ दिस इज अ डिजिटल सिग्नल जिसको आप ट्रांसमिट करेंगे, इसी को बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्योंकि ये फॉर्म है, पल्सेस फॉर्म में, जानते कि ये जब ट्रांसमिट होता है तो ये नहीं ट्रांसमिट होता, पल्सेस फॉर्म में जाएंगे आपका। तो 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 3 0 आ गए, फिर एक पल्स आ गया, फिर दूसरा पल्स आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 पल्स आ गए, फिर 2 पल्स आ गए, ठीक है ना, फिर 2 पल्स आपके हैं, फिर एक और पल्स है, फिर 0 है, फिर एक और पल्स है, फिर 0 है। तो ये आपका जो है ये पल्सेस ट्रांसमिट हो जाएंगे, राइट। यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। सो अब इसको मैं यहां खत्म करूंगा, तुम लोगों को क्वांटाइजेशन एरर वगैरह बाद में पढ़ाऊंगा, बट यू कैन सी दैट इज हाउ ए सैंपल्स and quantization level and encoding occurs, right? इसको यहां रख लो।